are you? घर पे ठीक है आप लोग? Hope you're doing very well at home, taking care of yourself. And a very big thank you for all your wishes on Teachers' Day. It was so nice of you. I was really very happy. Okay, so today we meet again to carry further the topic on why do we fall ill, right? We have already discussed a lot about the chapter, and we need to discuss a little more about the chapter, like what are the different types of pathogens and what are the diseases which are caused by them. हमने बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है चैप्टर का. बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है. कुछ चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बहुत फ्रीली पूछ सकते हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली एग्जाम्स में लिखना है उसका काफ़ी कुछ पोर्शन हमने कर लिया. टुडे आई वुड talk a little bit more about this topic and specifically about the different types of pathogens. What are the different modes of transmission? Which are the diseases caused by which organism? And a little bit about their treatment and pathogenicity, some words like that. So let us begin I start with the topic on different kinds of pathogen. Which are the different kinds of pathogens? So basically there are 5 types of pathogens generally which are infecting animal kingdom. First is bacteria, second is virus, third is fungi, sometimes fungi effects, then helminths. हेलमिंथ्स ये वर्ड्स किसके लिए यूज होता है? वर्म्स के लिए होता है. और फिफ्थ कैन बी प्रोटोजोन्स, जैसे अमीबा इज अ प्रोटोजोन्स. तो बेसिकली ये 5 कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस है जो ज्यादातर एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं. एंड राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिजीजेस रिलेटेड टू देम. अब आई वुड टेल यू लिटिल बिट मोर अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स. जैसे व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आप जानते हो, इट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट इज अ prokaryotic organism. That means it does not have a proper nucleus. Its genetic material is suspended directly inside the cytoplasm. Prokaryo, मैं वापस याद दिला रही हूँ, caryo word is related to nucleus. ठीक है? तो bacteria prokaryotic unicellular organisms. They are always made up of a single cell, but they have a huge capacity of infecting human beings and causing various diseases to them. So bacteria is one organism, prokaryotic unicellular organism, which can cause various diseases. अब जैसे मैं आपको बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बताऊं कौन कौन सी होती है, तो एक होता है जो बहुत कॉमन है, which is tuberculosis, or you call it TB in short, tuberculosis. This is a bacterial disease and highly contagious disease also. Like it can contagious को अगर किसी को TB है तो contact से नहीं होगा, लेकिन because that person is constantly breathing and this spreads through air or droplet infection, तो चांस बहुत हो जाते हैं आपको इन्फेक्ट होने के. So this tuberculosis is caused by a bacteria which is caused by Mycobacterium tuberculosis. So this Mycobacterium is generally एक ही वर्ड दिया जाता है, Mycobacterium. It causes TB, and this TB इसके लिए ट्रीटमेंट तो होता है एंटीबायोटिक्स. जब मैं एंटीबायोटिक आपको अभी इसके बाद टॉपिक बताऊंगी, देन यू विल नो. बट prevention is always better than care. That's why see nowadays we are used to masks and sanitizing our hands and all. But generally भी
आपको ये ध्यान चीज़ें रखनी चाहिए कि आप जब बहुत क्राउडेड एरियाज में जाते हैं तो आपको पता नहीं है किस इंसान को क्या डिजीज है, तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ हाइजीन बाय बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। तो tuberculosis and it is a disease related to the respiratory system. The bacteria enters via air through the nose and the respiratory system और ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन after some time this bacteria may invade the tissues and go and grow in any part of the body. So some people have tuberculosis of the spine, some have tuberculosis of the different organs like ovaries or any other part of the body. So it may later on invade and go to those tissues, but basic mode of entry in the body is the respiratory systems. तो lungs को बहुत ज़्यादा affect करता है, ठीक है। So this is one, tuberculosis. Second disease which can be caused by bacteria is typhoid. This is caused by Salmonella typhi. This is caused by Salmonella typhi, and this disease also is spread by contaminated or dirty food and water, ठीक है। So this is also bacterial disease. Then there is one which is cholera. Then there are various other bacterial diseases, but the most common is ट्यूबरक्लोसिस, जिसके बारे में पूछते हैं, टाइफाइड, कॉलेरा। तो आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर आपको पूछा जाता है नेम एनी 3 बैक्टीरियल डिजीजेस और नेम एनी 3 वायरल डिजीजेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेस। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट वायरस। एज यू नो व्हाट इज अ वायरस? वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग विच इज नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी. इट गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड उस होस्ट की मशीनरी को यूज करके वो अपने सेल्स बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है. सो इट एक्ट्स लाइक अ लिविंग बीइंग. एज आई टोल्ड यू, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है. तो वायरस वो एक छोटा सा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. It doesn't have cytoplasm or its own ribosomes, so doesn't have a machinery of its own. It goes and uses our ribosomes to reproduce. तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाता है ये बहुत हार्मफुल हो जाता है. एंड वेरियस वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया तो यूजफुल भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, विच हेल्प इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन viruses generally are never helpful. They are always either not very effective or they will be causing some kind of disease. They are not always on the contagious side or on the disease causing side. Sometimes they may be, some viruses may not be very highly harmful or highly dangerous for us, but they are never helpful. So ज़्यादातर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट वर्ड आता है कई बार, आप कोई क्वेश्चन टारगेट करोगे ना तो ऐसे आता है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट मतलब कम, दो वर्ड होते हैं जब क्वेश्चंस के अंदर. फैकल्टेटिव, देखो मैं ये चीज अलग बता रही हूँ, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव मतलब अगर उसको चांस मिलता है, मतलब दोनों साइड. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैरासाइट. अगर मैं कहूँ फैकल्टेटिव पैरासाइट तो वो दोनों साइड है, पैरासाइट भी हो सकता है और नॉन पैरासाइट भी हो सकता है. मतलब वो दूसरों पे डिपेंड, दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है या अपने आप भी सर्वाइव कर सकता है, जैसी कंडीशन है वैसे बिहेव करता है. लेकिन अगर मैं कहूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंपल्सरीली उसका एक ही मोड ऑफ सर्वाइवल है, दैट इज parasitism. मतलब viruses are obligate parasites. They don't have any other mode of survival except going in the body of the host and using its body and ultimately causing some harm. ठीक है, तो obligate and facultative ये तो ओलंपियाड्स में कभी आपको पूछ सकते हैं. So just keep in mind. But right now we're talking about simple viruses. They can be crystallized, made into small crystals. They are non-living outside the body.
connecting links between the living and non-living. They go inside the host and reproduce, and various diseases are caused by them. For example, polio, hepatitis, liver disease. Hepatitis A is very similar to jaundice. उसके बाद पोलियो डिजीज, वायरल डिजीजेस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीजेस वायरल है. और अब भी जो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है वो कौन सी है? कोरोना, कोविड-19. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज. कोरोना caused by the corona family disease, COVID. CO stands for corona, VI stands for virus, and D stands for disease. That is how COVID name has come into existence. COVID-19 जो है कैसे आया? CO corona, VI virus, D for diseases. That sums up COVID-19. So that is also viral disease. ठीक है ना? And so you know how careful you have to be to fight against these diseases. तो ये डिजीजेस भी आपको याद करनी है. उसके बाद फंगस. फंगस आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑफ 4 टाइप्स बेसिकली. दो तो यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे ईस्ट, एक होता है माइल्ड्यूज, मोल्ड्स एंड मशरूम्स. सो ईस्ट एंड माइल्ड्यूज वुड बी यूनिसेल्युलर एंड मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर मल्टीसेल्युलर. तो जो मोल्ड होता है वो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो फंगस आता है वो है. एंड ईस्ट आप जानते हो, इट इज समटाइम्स यूज्ड, हेल्पफुल ऑल्सो इन मेकिंग द डो सॉफ्ट. आटा जब आप इडली वगैरह मदर बनाते होंगे, यू कैन आस्क देम, समटाइम्स ईस्ट इज यूज्ड. इट मेक्स द डो राइज एंड फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट बनती है इडलीज एंड ब्रेड एक्सेट्रा. सो फंगस आर organisms which are of different cellular levels, but they cause diseases. Some diseases, they are helpful sometimes, but they cause some diseases like ringworm, which can be a skin infection. They cause fungal infections in the skin. If the mold grows in the nails, it would cause pain there. तो skin diseases बहुत cause करता है, that is fungi. Helminth. Helminth is a word used for worms. आपने सुना होगा पेट में कीड़े हो गए. हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसी बातें करते हैं ना. तो actually what is it? There are worms in the intestine. There are some worms which stay in the intestine and take food directly from that and grow inside, and they may cause harm to the intestine. एक elephantiasis filarial worm होता है. Elephantiasis is a disease caused by the filarial worm and it is very narrow. इस disease को शायद बोलते हैं, मैं आपको इसके common name के बारे में बाद में बताऊंगी. लेकिन elephantiasis is a disease in which the lymph nodes are inflamed. That is caused by helminth worm. याद रखना, ringworm is not caused by worm, it is caused by fungus. ठीक है. Elephantiasis हो सकता है. Then there can be this, you would not be studying diversity after this because this year it has been removed from your course. लेकिन उसमें आप different worms के नाम देखेंगे, जैसे planaria होते हैं, ये worms होते हैं, flat worms. There are nematodes, जैसे round worms होते हैं, है ना. ये वर्म्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फिलेरियल वर्म इज अ राउंड वर्म. अर्थवर्म जैसे आप जानते हैं ना, वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है, लेकिन वैसे ही राउंड वर्म्स होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं. लास्टली बात, प्रोटोजोन्स. मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था, प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेल्युलर. जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामेशियम है, ये ऑल आर प्रोटोजोन्स. एंड दे अमीबा, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिका कॉजेस डायरिया, डिसेंट्री इन द बॉडी. ट्रिप्रोसोमा के बारे में मैंने आपको बताया था. एंड पैथोजन विच इज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर से फ्लाई. ये मैंने आपको शायद पिछली बार बताया था, इसलिए मैं वापस नहीं लिख पा रही हूँ.
ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था कि अपनी NCERT में प्लीज check up the names of the pathogens and diseases given on the page where lots of pictures are given. So please check that. Trypanosoma, उसके बाद we had also talked about some other diseases which were caused by protozoans. लेकिन मैं वापस रिमाइंड करती हूँ, फर्स्ट आप क्या लिखोगे, डिसेंट्री, डायरिया, एंटामीबा, हिस्टोलिका कॉज करता है. सेकेंड, ट्रिप्नोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, लीशमानिया, डोनोवानी कॉजेज काला आजार, ब्लैक फीवर, ये भी दे रखा है. तो इन काला आजार का बहुत पूछा जाता है इन योर स्कूल एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर दैट. So these are the 5 categories of pathogens which are invading the body. I don't think you would be asked to categorize them. जो ज़्यादातर questions आते हैं, name 3 bacterial diseases or name 3 viral diseases or trypanosoma, kala azar, which organism causes it, which plasmodium also is a protozoan, it causes malaria. ठीक है, तो आपको ये नाम याद करने हैं. Categorize I have done just to make you remember the knowledge which has been brushed away. थोड़ा आपने पढ़ा होगा कई बार बट लेकिन भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने याद दिलाया. लेकिन आपको कैसे याद करना है, कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोन कॉज करता है और कौन सा प्रोटोजोन. बेसिकली प्रोटोजोन पे तो आप ध्यान ज्यादा देना, बिकॉज ये ट्रिप्नोसोमा और कालाजार के बारे में बहुत पूछा जाता है, लीशमानिया. सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट. इवन प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. ठीक है, और उनके वेक्टर्स के नाम भी याद करना. जैसे प्लाज्मोडियम का वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो फॉर द एंटामीबा तो वाटर से जाएगा, लेकिन ट्रिप्नोसोमा के लिए होता है से फ्लाई. ठीक है, सो वेक्टर एंड कैरियर के बारे में भी ध्यान देना. कैरियर तो इस सिंपल हाउस फ्लाई कह सकते हो आप, लेकिन वेक्टर्स याद है, मैंने पिछली बार डेफिनेशन लिखवाई थी. दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ट्रांसमिट एन पैथोजन फ्रॉम वन organism to other, but before doing so they keep the pathogen inside their own body for some time, and a little bit part life cycle of that pathogen is spent in the vector's body. तो पैथोजन को वेक्टर की बॉडी में एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, तभी वो उस स्टेज पे आता है जब वो इन्फेक्ट कर सके दूसरे ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट. एंड व्हाट इज वेक्टर, बहुत कॉमन क्वेश्चन, सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट. ठीक है, अब सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट this and I have sent the notes on the WhatsApp group. There is a table which is giving you the names of different diseases, causative agents, etc. So please pay attention to that. Now we should be talking about what is the way we can treat these diseases, right? These diseases obviously require treatment. ऐसा तो है नहीं कि diseases को अभी भी हम देखो COVID-19 की ट्रीटमेंट के पीछे कितना भाग रहे. द होल वर्ल्ड इज रनिंग. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन लाइफ हैज टू बी सेव्ड आफ्टर ऑल. तो इसका क्योर क्या है, ये डिजीजेस क्योर कैसे होती हैं? सो दीज डिजीजेस कैन बी क्योर्ड. फर्स्ट, एक तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन. ट्राई टू अवॉइड ऑल द कंडीशंस व्हिच विल कॉज डिजीज. सेकेंड, मेडिसिन्स आर गिवन, और मेडिसिन्स के अंदर एंटीबायोटिक्स आते हैं. देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच रिड्यूस द पेन एंड सिम्टम्स ओनली. एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिम्टम्स को कम कर देते हैं. लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिजीजेस अगेंस्ट बैक्टीरिया. स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक ये जो होती है आपको बैक्टीरियल डिजीजेस में दी जाती है. वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक वर्क नहीं करते. When I'll explain a little more in detail about the antibiotics, you'll understand why. But so let us now talk about the treatments. First, as I said, is is prevention. But second are medicines which are antibiotics, which kill or stop
पैथोजन फ्रॉम वर्किंग। कुछ होती हैं सो दिस क्योर करती हैं। कुछ मेडिसिन होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी, what do we mean by inflammation? Anti-inflammatory diseases are those disease, inflammation, what does inflammation mean? Please write a double M, huh? I just always go get this out. Inflammation means कभी भी आपको कोई पैथोजन बॉडी में गया है, योर सेल्स आर वर्किंग अगेंस्ट इट, तो किसी जगह पे जहां पे वो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है बिटवीन योर WBCs एंड दैट पैथोजन, तो वहां पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा हॉट हो सकता है वो एरिया, उस जगह पे सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेम्ड एरियाज जहां पे एक्टिविटी हो रही है बिटवीन द WBCs एंड द पैथोजन, कुछ सिम्टम नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो क्या करती है, सिम्टम्स को कम कर देंगी, जैसे फीवर को कम कर देंगी, तो यू वुड फील लिटिल इजी। व्हेन यू फील इजी, योर बॉडी विल बी एबल टू फाइट विद द डिजीजेस प्रॉपर्ली। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं जो रिड्यूस करती है सिम्टम्स को, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्योर कर देती है, एंटी फंगल मेडिसिन भी होती है, एंटीवायरल ड्रग्स भी होती हैं, बट एंटीबायोटिक जो होती है वो स्पेसिफिकली ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीजेस में प्रिस्क्राइब की जाती है। नाउ वो क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सी, just now I categorized various kinds of pathogens, right? Bacteria, virus. Now what is the aim of categorizing these pathogens? हम क्यों सभी को एक ही पैथोजन मान के नहीं चलते? Why? Because when we put pathogens in different categories, जब हम स्टडी करते हैं कि कौन सा डिजीज कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है, what we know, जैसे हमको पता चल गया कि एक बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, तो बैक्टीरिया पूरे ग्रुप का जनरल बॉडी मेकअप या बायोकेमिकल पाथवे मतलब उसकी लाइफ साइकिल कैसे आगे चल रही है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी में क्या बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी चीजें सिमिलर हो सकती हैं एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में, तो दवाई ढूंढने में बहुत आसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकुलोसिस पे वर्क करती है, तो माइट बी दैट कैन वर्क ऑन अनदर बैक्टीरिया ओनली, बट it would not work on a virus, it would not work on a fungus. So what is done? All these pathogens are categorized और फिर उन पे रिसर्च होती है, तो it becomes easier to find cure. ठीक है ना? अब मैं बात कर रही थी एंटीबायोटिक्स की। So ये क्वेश्चन आता है स्कूल में एंटीबायोटिक्स का। What was the first antibiotic which was discovered? It was penicillin. Penicillin. Who discovered it? Alexander Fleming discovered it. From what was it discovered? It was discovered from a fungus which was, इसको मोल्ड लिख सकती हूं मैं, which फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। Hope this is clear to you. If not, I'll use another marker. Hope that would be helpful to you. So, this is Penicillium notatum. Okay, so I would like to tell you a little more, a little bit of story how it was discovered. Questions में ये पूछ सकते हैं, ठीक है? So you memorize these. Which was the first antibiotic? Penicillin. Who discovered? Alexander Fleming. What was it discovered from? A fungus which was called Penicillium notatum. Now what happened? Actually, ये जो Alexander Fleming थे, he was a microbiologist working on a bacteria. Staphylococcus aureus बैक्टीरिया का नाम था। वो वर्क कैसे करते हैं? लेबोरेटरीज में ऐसे
ग्लास की डिश टाइप होती है जिसको पेट्री डिश बोलते हैं, दोनों साइड से उठी हुई जैसे, और बीच में आप कुछ डाल सकते हो। तो बीच में अगार अगार डाला जाता है, एक स्टिकी मटेरियल होता है जो एल्गी से मिलता है, वो डाला जाता है। उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ कल्चर डाला जाता है। कल्चर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बैक्टीरिया है थोड़े बहुत, फिर वो उस पर ड्रॉप डाल दिया जाता है। अब वो बैक्टीरिया को नरिशमेंट मिलेगा और वो ग्रो करेगा उस पेट्री डिश में। जब वो ग्रो कर जाएगा तो आपको एक मटेरियल मिल जाएगा ऑन विच यू कैन स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। तो फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और पता करते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया एंड he had to go away. He prepared his experimental setup, and then for some reason he had to go away from the laboratory for some time. So he went away. He said it's okay, आऊँगा तब और भी ग्रो कर जाएगा, तो it would be good to study the bacteria, बहुत सारा मुझे मिल जाएगा मटेरियल। But when he returned after some time, after some days, उन्होंने देखा कि ग्रो बहुत अच्छा कर गया है वो बैक्टीरिया। So he was happy, now he is going to study well. But he also noticed कि इस बैक्टीरिया के साथ साथ एक मोल्ड ग्रो कर चुका है। मोल्ड क्या? एक फंगस ग्रो कर चुका है। So he said okay, he noticed it. Then when he saw it under the microscope, उसने देखा कि किसी प्लेस पे तो बैक्टीरिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन at some places bacterial cells are broken down, their cell walls have been broken down and they are almost dead. So Sir Alexander Fleming was wondering कि what happened. फिर उन्हें ध्यान आया कि जिस जगह पे ये ब्रोकन सेल्स थे वहां पे वो मोल्ड ग्रो कर गया था, और फिर उनको ये आइडिया स्ट्राइक किया कि जरूर इस मोल्ड ने ऐसा कोई केमिकल रिलीज किया है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। एंड दैट वाज द बेस ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंटी अगेंस्ट बायोटिक बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एंटीबायोटिक विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन। किससे मिला था? ये जो मोल्ड ग्रो कर गया था इसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और क्योंकि वो केमिकल उससे आया था तो उन्होंने नाम रखा पेनिसिलिन, ठीक है। और दैट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, गिव द नेम्स ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, तो आप दे सकते हो पेनिसिलिन तो है ही, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन ये हो सकता है। ये नाम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। एमॉक्सिसिलिन, मॉक्स जो होता है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे नेम्स है ऑफ सॉल्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स। और एक चीज ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स डिराइव भी कहां से होते हैं? फंगस से मिला था ना ये, तो फंगस से मिलते हैं, वैसे ही एंटीबायोटिक्स केमिकल्स बैक्टीरिया से भी मिलते हैं जो वर्क करते हैं अगेंस्ट एज ए एंटीबायोटिक, ठीक है। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगस एंड दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो नॉट कि उसी बैक्टीरिया बट अदर पे वर्क करेगा, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, अ पोटेंशियल क्योर फॉर वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वायरसेस के अगेंस्ट नहीं वर्क करता। क्यों? वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन सेल्यूलर मशीनरी, राइट? तो वो तो होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या करता है? जैसे एंटीबायोटिक को अगर किसी बैक्टीरिया पे वर्क करना है तो हम एंटीबायोटिक लेंगे, हमारी बॉडी में मान लो कोई बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो एंटीबायोटिक जाके उस बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को किसी ना किसी तरह से रोकेगा। किसको रोकेगा? लाइफ साइकिल। और दिस वर्ड, डोंट यूज द वर्ड लाइफ साइकिल, यूज इट वुड इनहिबिट द बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ द बैक्टीरिया। किसी ना किसी बायोकेमिकल पाथवे को रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। सेल वॉल जब नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली ग्रो नहीं कर पाएगा। या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा, तो प्रोटीन नहीं बनेंगे तब भी नहीं सर्वाइव करेगा और धीरे धीरे मर जाएगा। तो उनका तरीका क्या होता है? गोइंग एंड स्टॉपिंग सम बायोकेमिकल पाथवे। अब इस वायरस का तो खुद का बायोकेमिकल पाथवे है ही नहीं, वो तो किसके सेल्स यूज करते हैं? हमारे। सो ऑब्वियसली द antibiotic would not work against the virus. There are various antiviral drugs which work.
which stop the growth of viruses, which are now being used. But antibiotics specially do not work against virus. ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है. तो और फंगस के लिए बताऊं, एंटी फंगल ट्यूब्स भी आती है. जब स्किन डिजीजेस पे ज्यादातर ट्यूब्स होती हैं जो आप यूज कर सकते हो. व्हाट वी कैन ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, ठीक है. आई यूज अ जनरल वर्ड ट्यूब, बट वी कैन से ऑइंटमेंट्स जो यूज होती है उनके पीछे एंटी फंगल की जगह एंटी माइकोटिक लिखा होगा. जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट someday if you get a chance, ठीक है. So these are the treatments and cures for various diseases. So today in this lecture I told you about antibiotic, I told you about the cure for it. अब next time जब भी अपन मिलते हैं I would be ending the lecture with some additional points, but till then pay attention to these things. This is a potential question in your school exams, so pay attention to the pathogens and how they are cured. Next time we'll discuss the topic how they are transmitted and a few more. What is immunization, pathogenicity, etc. But till then I end this lecture with this topic, antibiotics. Please study it for your exams. और अपन जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपन आगे बढ़ेंगे. मोस्ट प्रोबेबली विल कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है. सो टिल देन टेक केयर. थैंक यू फॉर लिसनिंग.